أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا پچھلی بار کہ یہ کلاس آخری تو نہیں ہوگی، لیکن اس بیچ کو پھر دوسرے بیچ کے ساتھ کمبائن کر کے آگے کی بھی کچھ صورتیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج یہ دیکھیں گے ہم کہ ہم نے کیا سیکھا، سیکھنے میں ہماری کیا کمی رہ گئی، سکھانے میں کیا کمی رہ گئی، وہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کے اور انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے اپنی پہلے کی نمازوں کا، بعد کی نمازوں کا، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے۔ اور اگر 1% بھی، جیسا ہم نے کہا، بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی بھی بہتر ہوئی تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ذرے ذرے برابر بھی عمل کو اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے، دیکھیں یہ فیڈ بیک تو انگلش کا ورڈ ہے، محاسبہ، کہ ہم اپنا حساب لیتے رہیں، محاسبہ حساب۔ تو ہینڈ ریز کریں جن کو فیڈ بیک دینا ہے اپنی اس کلاس کا، کہ کیا سیکھا، کیا کمی رہ گئی، کیا اور کر سکتے تھے، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی طرف سے بھی اور میرے لیے بھی۔ ایک ایک کر کے ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ ہما آ جائیں، آپ آ جائیں۔ جی الحمدللہ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ جو خشوع اور خضوع تھا وہ یقیناً بہت زیادہ بڑا ہے، کیونکہ بہت گہرائی سے اب ایک ایک لفظ کو پڑھ رہا ہے۔ میں گہرائی ورڈ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ ترجمے کے ساتھ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، جیسے آپ جو بھیجتی ہیں نا امیجز، تو وہ نیچے کے جو لفظی ترجمے ہوتے ہیں وہ تھا، لیکن اس کے ہر ایک کے اندر جو گہرائی تھی وہ الحمدللہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے یہ کلاسز اٹینڈ کر کے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے 6th بیچ، 7th بیچ، 8th بیچ یہ جو چل رہے ہیں نا، اللہ کے شکر سے میں سارے ہی اٹینڈ کر رہی ہوں، لیکن یقین مانیں ہر ایک بار جب پڑھتی ہوں، جب وہ کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، پھر کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے، جبکہ ہر بار اتنا ہی دھیان سے پڑھ رہی ہوتی ہوں، پھر بھی ایسی برکت ہوتی ہے اس کلاس کی الحمدللہ کہ ہر دن لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز میں نے پہلے اتنے اچھے سے نہیں سمجھی تھی، جیسے آج سمجھ میں آ گئی۔ آپ کے لیے ایک فیڈ بیک، الحمدللہ آپ کا پڑھانے کا جو طریقہ ہے، خاص طور سے جو لہجہ ہے، جو نرمی ہے، وہ دلوں پہ بہت اثر کرتی ہے۔ ایز اے ٹیچر میں نے ایک چیز سیکھی، کیونکہ میں خود بائی پروفیشن ٹیچر ہوں، جو میں نے آپ سے بہترین لرننگ لی، جو اوور آل کسی بھی علم کو سکھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو آپ بار بار کانفیڈنس ڈیولپ کرتی ہیں نا، یہ کہہ کر کہ نہیں یاد نہیں کریں، آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، آپ بس سنتی جائیں، وہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دیتا ہے کہ وہیں کے وہیں وہ ایز آؤٹ کر لیتا ہے بندہ کہ اچھا نہیں وہ مجھ سے پوچھیں گی نہیں، میں بس سن لیتا ہوں جتنا مجھ سے بنے گا، اور یہ چیز ہمیں اتنا آگے انشاءاللہ لے جائے گی کہ ہم کچھ کر گزریں گے۔ تو یہ طریقہ آپ کا بہت اچھا۔ ایک اور چیز بہت اچھی الحمدللہ جو آپ کے ٹیچنگ اسٹائل میں ہے، آپ کیوریوسٹی جگا دیتی ہیں، یعنی آپ ہم سے ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہی کہ یہ گرامر کا پارٹ ہے، یہ بھی کرنا ہے، آپ بس ایک چھوڑ دیتی ہیں ایک چیز دے کر کہ اب جس کی مرضی ہو۔ تو اس طرح سے وہ جو ایک ہائی اچیور ہوتا ہے، جو ایک ایوریج لرنر ہوتا ہے، آپ دونوں کو بیلنس بنا کے چل رہی ہیں، بنا پریشر ڈالے آگے کا دے دیتی ہیں، جس کے اندر ہے کیفیت اور جس کے لیے ممکن ہے وہ کر سکتا ہے، جس کے لیے نہیں ہے وہ بھی خوش بیٹھا ہوا ہے۔ اور جسے میں نے ابھی کل کی ہی کلاس ہے نیا، وہ جس نیا میرے لیے نیا، آپ کے لیے الحمدللہ پہلے سے ہوگا، باقی لوگوں کے لیے جو آپ پریپوزیشنز جتنے طریقے سے سمجھا گئی نا، جیسے فی یا فی الارضی، اب فی آ گیا ہے تو وہ زمین جو ہے اس میں زیر جو آیا ہے آخری حرف میں، تو اس سے پریپوزیشن کی والا آ جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گرامر کے جو فیکٹس میں ہر بار سیکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد یقین کریں جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے میں قرآن کھولتی ہوں، پھر وہ والے لفظ ڈھونڈتی ہوں،
اور وہی قرآن پڑھنے میں ایک نیا مزہ دے رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہاں، جیسے ایک چھوٹا بچہ بن جاتی ہوں میں اور وہ ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہاں یہاں بھی پرپوزیشن آیا، یہاں با کے استعمال سے یہ ہو گیا، یہاں من لگا تو ایسا ہو گیا، یہاں استاد نے بتایا تھا کہ فا کے ساتھ ال ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے. تو ہم نماز کا ترجمہ پہلے بھی جانتے تھے. قرآن کی لذت جو اب آ رہی ہے سمجھ کر پڑھنے میں اور آپ کے وہ جو گرامر کے فیکٹس کو اپلائی کرنے میں، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک اور بہت اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ سورہ جیسے مجھے یاد نہیں تھی اب میں یاد کر رہی ہوں. تو جس طرح سے آپ ترجمہ بتاتی ہیں نا تفسیر کے ساتھ، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ لفظ میں بھول جاتی ہوں کہ عربی والا یہ کیا تھا، پھر ریکال ہوتا ہے وہی نماز کے دوران کلاس کہ کہاں آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھایا تھا. تو وہ جو اردو کا لفظ ہوتا ہے وہ اپنے آپ عربک ورڈ یاد کرا دیتا ہے. تو عربی وہ جو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرَى وہ لٹرلی اب میرے لیے ممکن ہو رہا ہے. الحمدللہ کلاس کو جوائن کر کے اللہ آپ کے دنیا اور آخرت کے درجات بلند کرے اور ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر ہما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم لوگوں نے سیکھا ہے اس کو ہم عمل میں بھی لے آئیں، اور نہ صرف عمل میں لے آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لے اور ہم سب کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لے. ہما نے جو ایک بات کہی بالکل ہمیں، اگر ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکے تو پریشان ہونے کی بالکل بھی بات نہیں ہے. اگر ہم، ظاہر ہے ہر کسی انسان کی حالات الگ ہیں، جیسے میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا شاکلہ، جینیٹک کمپوزیشن سے لے کر موت تک ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اسی حساب سے ہمارا حساب ہونے والا ہے. تو ہم نے جو اپنی زندگی کی یہ آئی تھنک 26 آورس دیے اور صرف 26 گھنٹے میں بہت کچھ آپ سیکھ گئی، اور اگر ان چیزوں کو اپلائی کریں گی، ان چیزوں کو دیکھیں گے قرآن میں انشاءاللہ تعالی، تو واقعی بہتری آئے گی. اب میں بلاؤں گی یہاں پہ، جیسے انہوں نے ابھی گرامر کہا، میری ایک دوست ہیں یہ میرے گھر آیا کرتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ضرور گرامر سیکھیں اور کلاس میں آئیں. بہرحال ایک دو بار میں ہی انشاءاللہ جب نیا بیچ ہمارا شروع ہوا الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے جوائن کیا. تو یہ ہماری گرامر کی سیکنڈ بیچ کی بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے. اور بیسٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ سیکھنے کے اس سے شوق کے لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں. سیکھا، اور ظاہر ہے جب شوق ہوتا ہے تو آدمی سیکھتا بھی زیادہ ہے، لیکن ان کے شوق کی وجہ سے جس طرح سے یہ کلاس کو لے رہی ہیں. تو یہ تو ہو گئی ان کی گرامر کی بات، اور ان سے جب سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ گرامر سیکھنے کے بعد، حالانکہ ابھی ہاف وے تھرو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا سیکنڈ بیچ ہمارا ابھی چل رہا ہے، مڈ میں پہنچا ہے، تو ابھی پورا تو نہیں سیکھا ہے انہوں نے کہ، لیکن تب بھی یہ بتائیں گی کہ کیا اب کچھ فائدہ ہے. اور یہ ابھی تک میں نے اس سے پہلے ان سے کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی کہ کیا واقعی ان کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے. ایسے کوئی ان سے فیڈ بیک نہیں لیا، حالانکہ میری ان سے اکثر ملاقات ہوتی ہے. اور نماز کی کلاس ہمیں لگتا ہے جو پہلی کلاس ہو رہی ہے شروع کی، اس سے 6 بیچ سے پہلے سے یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی 8 بیچ میں بھی یہ ہمیشہ رہتی ہیں الحمدللہ. تو یہ بتائیں گی کہ کیا دوسری 2 پوائنٹ پہ یہ بات کریں گی مین، کیونکہ ظاہر ہما نے باتیں کر لی کافی ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کہ گرامر کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ تو یہ بعد میں بتائیں گی. یہ بتائیں گی کہ نماز کی کلاس کو، اور ہما نے بھی وہ بتایا کہ یہ کیوں بار بار کر رہی ہیں. نفیسہ نے ہینڈ ریز نہیں کیا، جی، میں نے ان کو السلام علیکم. بلا لیا. وعلیکم سب کو السلام میری طرف ورحمۃ سے اللہ. سلام. آپ نے میری بہت تعریف کر دی ہے. اتنا میں اس قابل نہیں ہوں واقعی، کیونکہ سب کو اتنا اچھا آتا ہے، اور بولنے میں بھی سب اتنا اچھا بولتے ہیں. اور میں نے جو جو کچھ سیکھا ہے قرآن کا، اور وہ گرامر کے لحاظ سے تو چلو نہیں بات کرتی، ترجمے کے لحاظ سے وہ آپ سے ہی سیکھا ہے. مجھے عربی کا
तर्जुमा बिल्कुल नहीं आता था। हालांकि इस्लामियात पढ़ते रहे हैं स्कूल में, तर्जुमे भी याद करते रहे हैं, लेकिन वो एक सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए था। और क्या बताऊं मैं आपको कि मैं इतना ज्यादा मतलब याद नहीं मुझे याद करना आता नहीं था। मतलब एक होता है ना कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसकी लर्निंग अच्छी होती है, उसकी अ, याददाश्त भी अच्छी होती है, लेकिन मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको एक एक लफ्ज को याद करूं और मुझे वो याद रहे। तो सबसे अच्छा आपका तरीका ये है कि आप याद करने का नहीं कहती। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि मुझे सुन सुन के ही याद हो गया। और नमाज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई पहले से। जहां पर मुझे लगता है कि मुझे अम, मुझे नहीं याद आ रहा, कोई तर्जुमा नहीं याद आ रहा लफ्ज का, तो वो फिर नमाज के बाद मैं ये करती थी कि देखती थी उसको कि इसका क्या है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, तो वो मेरा एक टेस्ट हो जाता था वहां पे। और नमाज का भी तर्जुमा मुझे नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। याद था, मैं अपनी मस्जिद में मुझे याद है कि बच्चों को पढ़ाती थी, याद करवाती थी नमाज का जरूर, लेकिन मुझे उसका तर्जुमा नहीं आता था। और कभी मुझे ये भी नहीं हुआ, मैं कहती थी हाँ बस कुछ अच्छा ही है, जो भी है मतलब अच्छा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवज्जुह से हमें ये मौका मिला, और ये अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिना बाजी। आप हमारे लिए क्या हैं ये, आप अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे और बहुत अजर अजीम दे इसके लिए। और अभी हुमा जी ने जो बातें कही वही जैसे मेरे दिल की बातें हैं कि आपका जो स्टाइल है, वे ऑफ टीचिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग, वो इतना जबरदस्त है। ये बहुत कुछ सीखने को मिला उसे, और दिल करता है कि एक एक बंदे को बताएं कि नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, और जो दुआएं आपने सिखाई हैं, जलसा की दुआ, और रुकू में जो हम पढ़ते हैं वो, उसके बाद खड़े होते हैं कोमा की दुआएं, वो वो हम इतनी जल्दी जल्दी पहले पढ़ लेते थे, दुआ के बगैर ही इतना जल्दी जल्दी करते थे, और रुकते भी नहीं थे, और उसका पता भी नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं। और अब जाके एहसास हो रहा है नमाज पढ़ते हुए कि हम तो कुछ भी नहीं, जो पहले की नमाजें थी वो कुछ भी नहीं थी, हमने क्या पढ़ा वो तो अब वही है कि बस अल्लाह ताला हमें बख्शे और कबूल करे, और जो हम पढ़ रहे हैं आप कबूल करे, और आगे भी अ, ये जारी रहे। और मैं क्लासेस मैंने थर्ड बैच से ज्वाइन किया था। अम, लेकिन उस पहले में तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई जब थर्ड बैच में ज्वाइन किया था, फिर फोर्थ में भी हुआ थोड़ा सा। और अब मुझे लगता है कि ये मुझे लेना चाहिए कि हर दफा वही बात है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कल आपने सूरत का बताया, सूरह कद्र का, तो उससे पहले नहीं पता था, उसकी जो तफसीर आपने सिखाई, उसका जो मकसद था वो हमें नहीं पता था। बस ये था कि एक रात आती है और ये वो बस उसमें करना है, इबादत करनी है। लेकिन जो वही है कि हम उसमें अल्लाह ताला के हक ही अदा करते, हम पहले जो करते थे। अब कोशिश करेंगे कि हक अदा हो जाए नमाज का और इबादत का अल्लाह ताला की। जज़ाकल्लाह खैर नफीसा, लेकिन आपका एक जवाब रह गया। मैं जी। चाहती थी आपसे कि आप ये बताएं कि क्या ग्रामर सीखना मुश्किल है। मैं पहले बता दूं सबको कि क्यों जरूरी है। पहले मैं बता दूं सब, नफीसा एक जी। मिनट, कि देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा जो लोग तजल्लियात नबूवत में है, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या था कि तबलीग जो है ना वो कुरान के जरिए करते थे, और असल तबलीग ही कुरान के जरिए है। जो हम किसी को बैठ के नसीहत करते हैं ना अपने अल्फाज में, इसी वजह से बात बनती नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखा कि कोई भी आता था, आपने देखी तो वो
उनको कुरान, जाहिर है उनको हिफ्ज था कुरान, वो समझ रहे थे कुरान को पूरी गहराई के साथ, तो हर सवाल के जवाब में कुरान की आयतें ही पेश करते थे उनको। तजल्लियात नबूवत में देखा आपने कि जब वो मौत के बाद का यकीन ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके हर हर सवाल का जवाब आयतों से ही आ रहा है। तो तरीका ही ये है तबलीग का कि कुरान के जरिए किया जाए, कुरान के जरिए जवाब दिए जाएं, वो कम अल्फाज में और दिल पे उतरने वाले लफ्ज। लेकिन जाहिर है उसके लिए हमें अरबिक सीखनी होगी। देखिए तबलीग क्या मतलब, वो तबलीग मतलब पहुंच जाना दूसरों, हमारे अपने दिल तक ही बात पहुंच जाए, वो भी बालागा में ही आ जाएगा। तो इस एक बात ने मुझे समझाया कि ये लैंग्वेज आनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि अभी ये 300-400 साल से ही बंद हो गया अरबिक का सीखना और सिखाना। वरना मतलब हम आ गए सिर्फ तिलावत करने पर, अरबिक में ही कुरान को पढ़ के बिना समझे रख देने पर। वरना इससे पहले बड़े बड़े स्कॉलर जो हुए हैं वो 9 अरब हैं जिन्होंने अरबिक का काम किया है। इमाम बुखारी कहाँ के थे? बुखारा कहाँ है? क्या किसी ने कभी रिसर्च की? हम सब जानते हैं कि इमाम बुखारी का नाम सबने सुना। फिर हम में से अक्सर, जाहिर है आप सबको पता होगा, मैं पूरी उसकी बात कर रही हूँ, पूरे लोगों की जो क्लास में है, सिर्फ उनकी नहीं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तलब वाले लोग हैं, शौक वाले लोग हैं, हो सकता है कि आपको पता हो। लेकिन इमाम बुखारी सऊदी अरब के नहीं थे, इमाम बुखारी मक्के मदीने के नहीं थे, वो रशा के थे। उनके माँ बाप ने बचपन से फिक्र की कि उनको मदारिस में, उस वक्त जो मदरसे थे, वहां से जब बच्चा निकलता था तो वो अरबिक सीख के निकलता था। और लोग अपने बच्चों को जैसे आज डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे फख्र महसूस करते हैं, वही फख्र वहां था कि किस बच्चे ने किस आलिम के अंडर में, इस मदरसे के बाद उस मदरसे, इस मुअल्लिम के बाद। तो वो एक लिस्ट रहती थी उनके पास कि इसने इन इन मुअल्लिम से, इन इन टीचर्स के अंडर में उसने सीखा है। जब मैं मौल्लिम वर्ड यूज कर रही हूँ तो चूंकि जब थोड़ी सी ग्रामर सीखी है तो ये मौल्लिम वर्ड भी दिल को खुशी दे देता है। अल्लमा का मतलब कि क्या हुआ, अल्लमा का, ताल्लमा का क्या मतलब है, ये सब फर्क फर्क है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई सीखेगा तो उसको बहुत, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, अभी जैसा कि नफीसा बताएंगी, लेकिन जितना फायदा होता है उससे बहुत बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम अपनी मेहनत को देखते हैं और मेहनत के बाद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फायदा दिया, तो वो कंपेयर करते हैं, तो दिस मेहनत इज वर्थ डूइंग। मतलब ये मेहनत कुछ भी नहीं है जो हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने। अब बात होती है कि जब तक हम अरबिक सीखेंगे नहीं तो वो कैसे बात आएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी चाहते हरम पहुंचकर, बैतुल्लाह पहुंचकर, कि हम छोटी सी कोई सूरा, आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी सूरा आ रही थी, अलकारिया आ रही थी, वलादियात आ रही थी, और ये सब, कि हम कोई छोटी सी भी सूरा पढ़ने की कोशिश करते वो कि मैसेज इनके कान तक पहुंच जाए, तो ये अपने कानों पर हाथ रख लेते कि हम, हमारे कान तक ना पहुंचे, कहीं ऐसा ना हो कि हम सुने और हम इनको फॉलो करने लग जाएं, हम इस दीन, अपने आबाई दीन को छोड़कर इसको अपना लें। तो अपने न सिर्फ कानों पर हाथ रख लेते तो जाहिर है उन तक तो मैसेज नहीं पहुंचा, बल्कि वो शोर और गुल भी मुंह से करते और तरह तरह के, अब आप इमेजिन करें कि कुछ है उनके हाथ में, उसको बजाने लगते, शोर और गुल भी करते कि दूसरे के कान में भी ना पहुंचे बात ये। ऐसे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी, बहुत कई साल हो गए वो सुना ही नहीं पाए कोई सूरा। अचानक एक दिन वो खड़े होते हैं, और ये पिछले, ये कल की ऑडियो में था तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। एक दिन वो खड़े हुए और ये पहली सूरा थी, इसीलिए मुझे सूरह नजम से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि जब किसी सूरा से, सुभान अल्लाह पूरा का पूरा कुरान ही है, लेकिन किसी सूरा से कोई बात अटैच हो जाती है तो वो और खास लगने लगती है, क्योंकि जब वो सूरा देखो, उस सूरा को पढ़ो तो पूरा सीन दिमाग में आता है। इस चीज की भी आदत डालें, इमेजिन करने की, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाए। और हमारी इमेजिनेशन पावर क्यों कम होती है? जब हम बहुत पिक्चर्स देखते हैं, जब हम बहुत बहुत इमेजेस देखते हैं, तो हम इमेजिन करना, हमारी ये इमेजिनेशन पावर कम हो जाती है। तो उसको भी थोड़ा सा कम करें, धीरे धीरे करके देखेंगे छूट जाएगा, और फिर आप इधर ही की तरफ इंशाअल्लाह ताला लग जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं
اور اچانک کی سورہ نجم کی والنجم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم اذا ہوا، اس طرح کر کے جب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ پوری ڈفرنٹ قاری میں نے تو صرف ایک شیئر کیا، میں میسج جو ہے بھیجتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس نوٹیفیکیشن وغیرہ پہنچ رہا ہوگا، ڈفرنٹ قرہ حضرات کے اس میں سننا شروع کریں اس کو تو لگے گا کہ واقعی. تو میں نے ایک ہی بھیجا وہاں پہ، سعد الغامدی کا میں نے بھیجا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھنی شروع کی تو وہ بالکل دم بخود رہ گئے، وہ جو کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور وہ شور و غل کرتے تھے وہ سب بھول گئے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، ان کی سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ کے کلام نے وہ اثر کیا. سمجھ میں آنے کی بات بھی نہیں ہے، سمجھ میں ہماری بھی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے کلام کا اثر ہے. تو ہم اپنی بات، ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ رہ کے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عربی آتی ہی نہیں، ہم ان کو قرآن کا میسج پہنچا ہی نہیں پاتے. ہم سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے ایک دوسرا طریقہ ہے تبلیغ کا، اخلاق اور عمل، وہاں بھی ماشاءاللہ ہم کورے ہیں. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، صرف دو چیز، ووکیبلری اور گرامر. اس کی ووکیبلری مطلب ہمارے پاس الفاظ ہو جائے، ہمارے پاس ورڈز کا ایک ٹریجر ہو، ذخیرہ ہو. جب ہمارے پاس الفاظ ہوں گے اب ان الفاظ کو صحیح سے ہمیں بالکل وہ دیکھیں، جب ہم ایک پزل کی پکچر بناتے ہیں اس کو سمجھیں کہ اس کو فکس کرنا آ جائے، کس لفظ کو کس طرح کہاں فکس کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اردو ہم بولتے ہیں اگر ٹوٹی پھوٹی ہو گئی، انگلش ہم بولتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، مطلب پھر بھی وہی رہتا ہے. عربک چونکہ بہت بڑے میسج کو ایک کم پیجز میں، کم الفاظ میں لے کر آنا تھا تو زیر، زبر، تا، تا، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہاں پہ گرامر تو الفاظ معنی میں بار بار کہتی تھی کہ بس 7 بار آپ پڑھیں، 7 بار آپ پڑھیں. یہ ہماری کلاس صرف نماز کی ہی کلاس نہیں. میرا مقصد جو تھا، جیسے میں بتا رہی ہوں، میرا مین ایم جو تھا کہ میں آپ کو نہ صرف عربک لینگویج سے آپ کی محبت بڑھ جائے بلکہ قرآن سے محبت ہو جائے کہ ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. جب ہم تلاوت کریں تبھی ہماری سمجھ میں آئے، ورنہ جب تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ کیوں جو ہے ہم کھڑے ہیں گھنٹوں، جب تراویح پڑھتے ہیں ایک ایک پارہ ایک دن میں ہوتا ہے، اتنی دیر کھڑے، پیر میں درد ہو گیا، دل پہ تو کچھ اثر نہیں ہوا، تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اب دیکھا کہ ورڈ میننگ یاد کر رہی تھی آپ جب صورتوں کی، تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کتنی چیزیں ریپیٹ ہوتی. وما ادراک ما، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی کو بھی ہوگا جس نے یاد نہیں کیا کلاس میں ہی. اسی لیے میں کلاس میں ہی بہت ریپیٹ کرتی ہوں بات کو کہ آپ کو کلاس میں ہی یاد ہو جائے. پھر تھوڑی سی آپ محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پکی بھی ہو جائے گی. تو قرآن کا میں نے یہ آپ کو دکھایا کہ قرآن خود ہی ریپیٹ کر کر کے بی، فی، من، علا، الہ، لی، یہ سب آپ کو پتا چل گیا. بہت میں نے بتایا کہ میں نے اچھی خاصی چیزیں آپ کو اس 26 گھنٹے میں آپ نے سیکھ لی، اچھی خاصی چیزیں. تو ورڈ میننگ یاد کرنے کا آپ نے دیکھ لیا، اس کا بھی آپ کو ایک آئیڈیا لگ گیا کہ کس طرح ووکیبلری ہم بڑھاتے ہیں. بس ان کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اپنی زندگی کے کچھ گھنٹے ہم کو اسائن کرنے، یہ نہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. ایک ہمارا گول تو ہے لیکن پلان نہیں ہے ہمارے پاس. ہم ایسے مسلمان ہیں، گول ہمارا جنت کا اور پلان ہمارا کہیں اور کا. تو عربک کو بھی سیکھنے کے لیے اگر آپ کو سیکھنا چاہتی ہیں، قرآن تلاوت کریں اور سمجھ میں آئے، ہر کسی کے آ سکتا ہے کیونکہ یہ توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اس میں بالکل جیسے نفیسہ نے بھی کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا تھا، اور یہ بہترین یاد کرتی ہیں، کلاس میں سب سے اچھا آنسر کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے دوسرے سبجیکٹس میں ہمیں وہ چیز نہ آئے لیکن یہاں پہ اللہ کی مدد شامل ہے. تو سیم جہاں ہم دوسرے سبجیکٹس میں نہیں کر پا رہے ہیں، آپ یہاں آئیں گی تو آپ کو بہت ہی میریکلس لگی یہ باتیں کہ ارے یہ تو میں نہیں کر پاتی تھی جب میں ینگ تھی، جب میں یونی میں تھی. اب میں نے 20 سال یونی چھوڑے، 20 سال ہو گئے، اور پڑھنے لکھنے سے پین بھی اب میرے ہاتھ سے نہیں چلتا. جب ہم کچھ الفابیٹ لکھتے ہیں تو پین بھی سلپ ہو رہا ہوتا ہے، گرپ ہی نہیں رہ گئی. لیکن 3-4 مہینے میں ہی دیکھیں کہ کیا ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے.
तो वोकेबलरी का आपने देखा किस तरह करना है, और ग्रामर का एक बार बताएंगे, क्योंकि नफीसा ने ग्रामर भी एबीसी यही सीखा इसी क्लास में, ग्रामर की। तो ये बताएंगी कि क्या ग्रामर सीखना मुश्किल है और कैसे सीखना है और कैसे सीखना, ये बताएंगी ये नफीसा, प्लीज आए। जी हाँ जी, मैं ग्रामर का हमेशा यही सुनती थी कि अरेबिक एज अ लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, और यही था शुरू से ही जहन में यही था। मेरी सिस्टर करती थी तो उन्होंने जब ग्रामर स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसको छोड़ दिया कि मुझसे नहीं, उनसे नहीं हुआ। और मेरे माइंड में भी यही था कि ग्रामर नहीं हो सकती है कभी भी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी, ये भी नहीं था। फिर जब आपसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे हाथ में आपने पहला पारा दिया और मुझे पढ़ाया, सूरह फातिहा तर्जुमे से पढ़ाई और कहा ये घर ले जाओ और इसको करना है ना, आपने आपको शौक है तो आप ये करेंगी। फिर मैंने स्टार्ट किया उसको और आपको वॉइस में सुनाना शुरू कर दिया, एक दो दो आयात इस तरह से तर्जुमे के साथ। वहां से मेरे गौर व फिक्र वहां से मेरा शुरू हुआ। और आपने ये देखते हुए मुझे उस वक्त ग्रामर का फर्स्ट बैच करवा रही थी, फिर सेकंड में मेरा आपने कहा कि इसमें स्टार्ट करो, तो उस वक्त तक ये था कि मैं कैसे करूंगी ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, वही बात है, वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा और इजी वे में आपने सारा समझाया कि पता ही नहीं चला, इतना कुछ सीख लिया। और अब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ ये अल्फाज तो, इनके ऊपर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था, और अगर कभी किया भी था तो मुझे समझ नहीं आते थे। जैसे भी बाकी सबको तो शायद ना ये लफ्ज समझ में है, जैसे हसर का मफहूम आप पढ़ा रही हैं, जैसे वो जब हम जैसे हुआ के लिए वो यूज हुआ, लेकिन वो जब दोबारा आता है दो तीन दफा एक ही जुमले के अंदर वो लिखा जाता है किसी बात के बारे में, तो उसमें वो बार बार वो क्यों कहा जाता था। मैं यही कहती थी कि मतलब इसका, इस लफ्ज का किसका मतलब वो है, मतलब इंग्लिश में जैसे हम ही कहते हैं, तो अब ही को हम बार बार लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे क्यों बार बार आ रहा है तर्जुमे में उर्दू में, तो वो उसकी अरबी कहाँ है, मुझे उस वो की अरबी किसको मैं मानूं, हुआ को मानूं या हु को मानूं, किसको मानूं। तो मुझे ये चीजें नहीं आती थी, तो वो अब इतनी अच्छी आ गई और इतने आसान लगने लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ग्रामर के साथ जो आपने एक बुक स्टार्ट करवाई है अल किरातुल वादिया, जिसमें हमारी जो अगर लफ्ज हमारे कोई तलफ़ुज़ हमारा ठीक नहीं है, हमारे जुबान पे अरबी के अल्फाज इतनी रवानी से नहीं चढ़ते, लेकिन वो किताब पढ़ने से, और उसमें भी आपने उसको भी ग्रामर के लिहाज से हमें सिखाया। तो वो अब मैं पिछली वीडियोस जब मैं रिपीट में देख रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इतनी मेहनत, जितनी मेहनत आपने की उतनी हमने नहीं की, जितना शुरू में आपने जोर लगाया इतना हमने नहीं लगाया। क्योंकि वो आपने स्टार्ट देना था, वो जो है ना गाड़ी का जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो जरा होता है कि वो स्टार्ट आपने किया, और अब आगे हमारा काम है कि हमने उसको आगे लेके चलना है हम इंशाअल्लाह ताला। और बाकी सबको भी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि अरबी सीखना आसान है, बल्कि बहुत आसान है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की मदद वाकई शामिल हो जाती है। बाकी हम जो दुनिया का इल्म सीखते हैं वो नथिंग। मैं अब जाके सोचती हूँ कि इतनी जिंदगी जाया कर दी मैंने सिर्फ दुनिया का इल्म सीखने के लिए, और जॉब में अपने आप को मसरूफ रखा, और उस वक्त तक ख्याल भी नहीं आया मुझे कि ये चीज मैं क्या कर रही थी। तो अब शायद मुझे सोचने का अब मौका मिला, या अल्लाह ताला ने दिल में डाला है, तौफीक दी है, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होती, तौफीक नहीं मिलती हमें, हम कुछ नहीं कर सकते, सोचते ही रह जाते हैं, हम कर नहीं पाते। तो ऐसा ही था कि आप सब भी सीखें, बहुत आसान है। अगले बैच में इंशाल्लाह आप सब अगर ज्वाइन हो तो स्टार्ट में ऐसा ही होगा कि अगर आपके पास लगे कि टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा वक्त निकल आएगा और सुनने से ही याद हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब उस टाइम पे आपको खुद तब मेहनत करनी होगी, जब आपके दिल में ये मोहब्बत हो जाएगी इसकी कि आपने इल्म की तलब की, शौक पैदा हो जाएगा और आप फिर छोड़ नहीं सकेंगी, बेशक टाइम हो या ना हो, फिर आप उसको जारी रखेंगी।
तो जज़ाकल्ला बहुत खैर अच्छा नफीसा। लगा। आप हाँ, कुछ कुछ और कह रही हैं जज़ाकल्लाह। आप? मैं यही कह रही हूँ कि सबको जो है वो ज्वाइन करें इंशाल्लाह, और अच्छा लगेगा। इल्म जाहिर है कुरान पाक समझ के पढ़ने का, जब पढ़ते जाएंगे और साथ साथ समझ आएगा तो उससे अच्छी और क्या बात होगी। कह रहे हैं जब, जज़ाकल्ला खैर नफीसा, जब नफीसा ने ये कहा कि जो है सुनते ही रहेंगे तो याद आ जाएगा, तो मुझे याद हो जाएगा, तो मुझे ये लगा कि इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि हिना इतना बोलेंगी कि आपको याद हो जाएगा, आप बस सुनती रहे आप। और वाकई मैं ऐसा करूंगी कि मैं ही इतना बोलूंगी बार बार कि इंशाअल्लाह ताला आपको याद आ, जो बिल्कुल भी वक्त ना निकाल सके। हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर हमें कुछ नहीं आता था, 5% आ गया, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अपने हालात के हिसाब से बात हो रही है ना यहाँ पे। मैंने अभी देखिए, मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, मैंने जब ये चल रहा था मैंने उनको मैसेज किया, और मैं अभी देख रही हूँ माशाल्लाह कि प्लीज आप आ जाएं। तो वो आ गई है क्लास में, और थोड़ी देर में ही उनकी अपनी रेगुलर क्लास भी शुरू हो रही होगी। ये मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, हिरा नाम है इनका। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो आप इमेजेस देखती हैं, ये भी ये बना के भेजती हैं। मैं अब इनके बारे में क्या बताऊं। अल्लाह सुब्हानो ताला ये जो कुछ भी करती हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत ज्यादा बरकत दे और उसे कबूल करे। बहुत ही प्यारी बच्ची हैं। और ये मेरे फर्स्ट बैच की ग्रामर की, फर्स्ट बैच में हमारे पास 70 के करीब लड़कियां थी। तो ये बताएंगे कि एक बड़े ग्रुप को किस तरह, जैसे नफीसा के बैच में सिर्फ 12 या 14 लड़कियां हैं, लेकिन हिरा के बैच में 70 के करीब लड़कियां थी। तो अगर एक बड़ा बैच भी है तो भी हम किस तरह से मैनेज करते हैं, और क्या अरबिक सीखना मुश्किल है, ये बताएंगी। ग्रामर सीखना मुश्किल है, और ग्रामर के ऊपर ही ये बताएंगी बात। हिरा प्लीज आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगी कि मुश्किल कोई भी काम नहीं होता जिंदगी में। इंसान ने अगर कुछ सीखने का इरादा करे और लगन से उसको स्टार्ट करे तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला उसमें लाजमी आसानी पैदा कर देते हैं। हमारी 70 की क्लास में भी ऐसा ही था। लड़कियों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था शुरू में कि ग्रामर कैसे करेंगे, और अब हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है वो कोर्स। यानी जितना सिलेबस था हमारा उस कोर्स का वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि अभी कल की क्लास में ही, हालांकि मेरा ख्याल है कोई 4-5 महीने हो चुके हुए हैं कोर्स का सिलेबस कंप्लीट हुए, कल की क्लास में हमारी टीचर ने, एक दूसरी टीचर ने ग्रामर का क्वेश्चन पूछा, तो सब स्टूडेंट्स जो है वो चैट में लिख रहे थे उसका आंसर, और वो बहुत खुश हो रही थी। और बार बार रिपीट करने की अगर मैं बात करूं तो वाकई ये तो अगर 10-12 की क्लास में मैम ने बार बार रिपीट करवा के और नमाज की क्लास में याद करवाया है, तो 70 की क्लास में भी ऐसे ही था। इतनी दफा चीजें रिपीट हुई हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनको हम कह सकते हैं कि ये मतलब सबसे कम इंटरेस्ट लेने वाले थे ग्रामर में, उनको भी माशाल्लाह से उन्होंने इतना इम्प्रूव किया, इतनी अच्छी तरह से याद है कि अब भी अगर उनसे ग्रामर में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबके हैंड रेज होते हैं और वो बड़े शौक से बता रहे होते हैं। अरबी जुबान सीखना इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है, अगर और कुरान को समझने के लिए, कुरान की खूबसूरती हम कभी भी तर्जुमा पढ़ के नहीं समझ सकते। मुझे इस बात का अब अंदाजा ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, क्योंकि सुन तो हम पहले भी सुनते तो हैं कि अरबी जुबान, जब तक हम कुरान को उसकी जुबान में नहीं सीखते हैं हम कभी भी उसको उस तरह से नहीं समझ सकते, उसकी खूबसूरती को नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ लेते हो आपको मजीद अंदाजा इस बात का होता है, पक्का यकीन हो जाता है, आइनल यकीन जिसको बोलते हैं, कि वाकई ऐसा ही है। और ये बताने से नहीं हो सकता, ये एक्सपीरियंस करने से होता है। हर बंदा खुद इसको एक्सपीरियंस करे तो वो उसको इन डेप्थ उसकी खूबसूरती को समझ सकता है। अ, जैसे ये हम सुनते थे कि माजी के सीगे में बात हो रही है कुरान में, और ये क्यामत की निशानियों के बारे में माजी के सीगे में या योम हशर के बारे में बात होती है, और वो इतने यकीन से होती है कि जैसे हुआ ही पड़ा है, एक काम अभी कंप्लीट हो चुका हुआ है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ये काम तो समझे हो गया। तो उस चीज को हम फील ही नहीं कर सकते जब तक हम अरबी जुबान से वाकफियत नहीं हासिल कर लेते। नमाज में तो अभी ये नमाज कोर्स में मैं शुरू से थी, और इसके फर्स्ट बैच से मैंने सारी क्लासेस इसकी अटेंड की हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस सब स्टूडेंट्स का रहा, और सब ने इससे बहुत कुछ सीखा।
और सब लोगों की नमाज मैंने इसमें सुना है सब स्टूडेंट से, और मैंने खुद भी फील किया है कि आप उसको जब तक उसके तर्जुमे से उसको इन डेप्थ फील नहीं करते हो, आपकी नमाज में बेहतरी नहीं आती है। और ये दिन में हमने 5 टाइम नमाज पढ़नी होती है। कोई कपड़ा भी हम लोग अगर मार्केट से लेने के लिए जाते हैं ना, तो हम कहते हैं हमने ये सबसे ज्यादा यूज करना है, तो ये हमने बेहतर क्वालिटी का लेना है, अच्छी वाली चीज होनी चाहिए। तो नमाज हमने दिन में 5 वक्त पढ़नी होती है, और ये हम पे सारी उम्र हमने पढ़नी होती है। तो उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, उसको उस तरह से हम लोग नहीं सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हर इंसान को जितनी उसमें सलाहियत हो लाजमी कोशिश करते रहना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जिस चीज की तरफ बढ़ता है, अल्लाह ताला उस चीज में उसके लिए वैसे वैसे आसानियां पैदा करता है। जो जिस चीज के लिए अपनी जान लगाता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला वैसे उसके लिए आसानियां पैदा करता जाता है। ये बस हम लोग इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि हम लोग अगर सुस्ती की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो फिर सुस्ती की तरफ ही हमारी राहें आसान होती जाती हैं। और अगर हम लोग किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें जरूर रास्ता निकाल देते हैं। जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जो जिनका भी बैच कंप्लीट हुआ है, वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को, बड़ों को लाजमी एटलीस्ट नमाज जो है वो उनकी बहुत अच्छी हो जाए। जिसमें सलाहियत है वो अरबिक कोर्स कोई ज्वाइन करें, ग्रामर सीखें, तर्जुमा सीखें, तफसीर सीखें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें। यानी कोई ना कोई ऐसा रास्ता जो है वो अपनी जिंदगी में लाजमी रखें, जिससे उनका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बना रहे। अल्लाह ताला बहुत आसानियां सबके लिए करे। और अल्लाह ताला मैम को जज़ाए खैर अता करें, जिन्होंने अभी ये मैं 9 बैच माशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। और 9 बैच का अभी जब मैम ने बताया, तो मैं मैम से कह रही थी कि आपने प्रीवियस बैच में कहा कि ये लास्ट बैच है। तो यानी ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको इतनी तौफीक दी। एक के लिए भी, यानी एक भी बंदा अगर मैम से ये कह देना कि हमें जरूरत है हमें, तो मैम एक के लिए भी उतनी ही एफर्ट करती हैं जितनी वो ज्यादा लोगों के लिए करें। यानी अगर एक भी बंदा आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट हमें भी एफर्ट करनी चाहिए ना। आप देखिए कि मैसेजेस इतनी दफा रिकॉर्ड करना, ग्रुप में भेजना, ये आसान टास्क नहीं है। और कभी कभार कंट्रीज का डिफरेंस आ जाता है, टाइमिंग्स का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें अंदाजा नहीं हो पाता कि दूसरी तरफ जो है वो क्या टाइम है। और उस वक्त भी मैम को अगर, यानी किसी भी वक्त मैम को मैसेज करें और कोई भी बात पूछनी हो, तो मैम का उसी वक्त रिप्लाई आता है, और वो उसी वक्त जो है वो हमें बताती हैं। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए मैम को। अ, अल्फाज नहीं है मेरे पास। वमा तौफीक इल्ला जज़ाकल्लाह। बिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हिरा। बस सब अल्लाह ताला की तौफीक से। और जाहिर है जब आप जैसे मेहनती स्टूडेंट हो तो काम करने का दिल भी चाहता है। और जो कुछ भी जितना पता है, दिल तो चाहता है कि वो सारा का सारा ही बता दिया जाए, लेकिन जैसा कि हिरा समझेंगी, और अभी सिर्फ शायद हिरा ही समझेंगी, नफीसा नहीं समझेंगी, कि अल्लमा मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे धीरे चलना है। तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब न सिर्फ अपनी नमाजों को बेहतर बनाएं, बल्कि कुरान को भी समझ कर पढ़ने वाले बन जाएं। बस मेरी यही ख्वाहिश, तो हल्का सा वर्ड है, तड़प भी हल्का सा वर्ड है। मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कि ये कैसी फीलिंग है, कि दिल चाहता है कि सबको ये मजा मिल जाए कि जब वो कुरान पढ़े तो उनकी समझ में आए। और चंद सालों की ही बात है। हम जब खुद देखते हैं कि अपनी पीएचडी तक की डिग्री के लिए कितने साल लगाए, कितने साल लगाए, और अभी अरबिक को सीखने में चंद ही साल लगाए हैं, और ठीक ठाक, मतलब कि ठीक ठाक तो क्या कहें, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। तो ये बहुत, जैसा कि मैंने बताया, कि एफर्ट के मुकाबले में रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब कोशिश करने वाले बने, और बिल्कुल हिरा और नफीसा की तरह जम जाएं इंशाअल्लाह ताला। जैसे नफीसा ने बताया, तो जब ये मेरे घर आई थी नफीसा, तो बस मैंने इनको, बहुत मुश्किल होता है, आप दावत में आए हैं तो आप खानों की बात करते हैं, इसकी चीज की बात करते हैं। मुझे याद है कि मैं इनको, अब पूरा मुझे वो सीन अभी तक याद है कि मैं इनको अपने रूम में ले गई, मैंने कहाँ बिठाया, और
फिर मैंने सूरह फातिहा का उठाया और तर्जुमे वाला पेपर बुक इनको दी कि आप इसको देखती चलें और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो बस एक बंदे को थोड़ा सा टेस्ट कराने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको मजा देने की जरूरत है। आसान नहीं होता है किसी को आप कहें कि आप अरबिक सीखना शुरू करें, आप तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड सीखना शुरू करें। ये कहने के लिए ही बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और मुस्तकिल दिमाग के पीछे जब मैं किसी के पास बैठती हूँ तो बात तो कर रही होती हूँ, मेरे दिमाग के पीछे ये चलता रहता है कि कब अल्लाह ताला वो मौका दे मुझे कि मैं ये बात लेके आऊं कि जरूर सीख ले। इससे नमाजें बेहतर हो जाती हैं, कुरान पढ़ना बेहतर हो जाता है, जिंदगी भी बेहतर होती है। फिर हम कुछ भी करते हैं, देखिए गलती तो करते हैं, गलती इंसान तो खता कहते हैं ना, खत्ताऊन वर्ड आता है, खत्ताऊन, हिरा समझ रही होंगी इंसान के लिए कि सिर्फ खता नहीं, खता दर खता हम करते ही रहेंगे, लेकिन फर्क ये पड़ जाता है कि हमें फिर एहसास हो जाता है जब हम कुरान समझ के पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम अपने आप को कुछ नहीं समझते, फिर वो बात अपनी हकीकत समझ में आ जाती है। वो सारी बातें कि हम मिट्टी से बने, हम ये वो सारी बातें, मिट्टी से हमें क्यों बनाया अल्लाह ताला ने, कि हम अपना दिमाग हमेशा हम सही रखें। सुभान अल्लाह। तो बस कहना ये है कि न सिर्फ नमाज बेहतर करें, न सिर्फ कुरान पढ़ना बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर हम सीखेंगे, बल्कि बेहतर इंसान भी बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की नजर में बन जाते हैं। दुनिया की नजर का तो नहीं पता, क्योंकि दुनिया तो जैसा हमको देख लेती है वैसा ही फिर एंड तक सोचती रहती है, लेकिन अल्लाह की नजर की मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह तो खताओं को माफ कर देता है ना, वो तो दरगुजर करके पूरा एकदम डिलीट कर देता है। सुभान अल्लाह। रब नहीं करता, इरेज नहीं करता। मैं देखिए रब भी बोल रही हूँ तो कलकला कर रही हूँ, सुभान अल्लाह। अब इंग्लिश भी बोलो तो अरबिक की तरह निकलती है। तो अ, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी गलतियों को क्या करता है, डिलीट कर देता है। और आप जब भी सीखने सिखाने पे आएंगे तो ये बहुत खूबसूरत सफर होगा। उसका बस एक करना होता है कि जो जो कहती चलो, अगर कहूँ 3 बार पढ़े तो बस 3 बार पढ़ ले, अगर कहें 7 बार पढ़ो तो 7 बार पढ़ ले, है ना। कभी कभी तो मैं कहती हूँ तस्बीह पढ़ ले, मतलब क्या है कि 100 बार पढ़ ले। तो बस जो कहा जाए बस वो कर ले। और उसके बाद जब भी अगर आप हमसे सीख रहे हैं फिर मेरे ऊपर छोड़ दें, बस जो कहा जा रहा है वो कभी भी हिरा बताएंगी कि ऐसा कोई काम असाइन नहीं किया, हल्के से हल्का रखा जाएगा। कभी भी आपको कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा कि आप ओवर बर्डन फील करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्यों हिरा, ऐसा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई ओवरबर्डन महसूस करें, कुछ लिखना पड़े आपको, कोई बहुत ज्यादा काम करना पड़े, इसके लिए बस बहुत आसानी से पता भी नहीं चलेगा कि आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, और आपको बाद में पता चलेगा कि है ये मैंने याद कर भी लिया और ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसा नहीं है, ये बस एक बार ट्राई करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जजाकल्ला खैर। या तो हम लोग की ग्रामर की बात चल रही है यहाँ पे, अब नमाज के वापस आते हैं। जजाकल्ला खैर हीरा, अगर आप जाना चाहें तो चली जाएं। मैंने एक मैसेज किया और आप आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे। और अगर रहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कोई और नमाज के इस नमाज की इन क्लासेस के हिसाब से देखिए, नमाज ही नहीं की, हम लोगों ने सूरतें भी की। ये आपका पहला बैच है जिसमें हम लोगों ने सूरतें भी की। तो जब सूरतों की तफसीर पढ़ी गई तो क्या एहसास हुआ? क्लास का टाइम हमारा निकल गया, लेकिन मैंने सोचा कि हम ही लोग बोल रहे थे तो क्या पता कोई बोलना चाहे। तो प्लीज आप अगर हैंड रेज करना नहीं आता बस माइक अनम्यूट कर लें। कभी होता है कि हमें माइक अनम्यूट करके आप बोल सकती हैं कि जब हमने सूरतों की तफसीर सीखी तो क्या सीखा। और हम आप बताएं। मैम सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि पहले हम लोग सिर्फ पढ़ते थे, वो जिस तरह से जो ऑटो पे लगे हुए हैं पढ़ रहे हैं। अब तो बाकायदा जब पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में वो सब चल रहा होता है जो आपने बताया, जो इसका शान नजूल, उसका जो है वजह नजूल, वो जो बताया वो सब दिमाग में चल रहा होता है बाकायदा, ऐसे जैसे स्क्रीन हमारे सामने हो, तो पढ़ने का कुछ मजा ही अलग हो जाता है। और इतनी लज्जत और इतना बंदा डूब जाता है ना कि पता ही टाइमिंग का नहीं पता चलता।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4 منٹ 5 منٹ میں جو ہے پوری نماز نپٹ گئی. ابھی تو جو ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. اور اتنا اچھے سے جو ہے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اس پڑھتے ہوئے, ذہن میں جو ہے ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا ہے اس, اور وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو بہت بہت لذت, بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور دل سے آپ کے لیے نا دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں. چلیں جزاک اللہ خیر. ام مریم, الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکھا اور سکھایا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی آپ لوگ بہت اچھی طرح سیکھیں, بہت اچھی طرح سیکھیں, کیونکہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ سکھانے کے لیے پھر بہت کوئی بھی بات منہ سے غلط نہیں نکلنی چاہیے نا, تو بہت اچھی طرح سے سیکھیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سکھانے والے بنیں. اور جس کسی کو بھی دیکھیں, رمضان سے پہلے جو یہ 9th بیچ شروع کیا ہے, رمضان سے فوراً پہلے, وہ لوگ جو سال بھر ہے نا طلب کی ہوتی نا کہ ہر کسی انسان کا طلب میں بھی ڈفرینٹ لیول ہے, تو جو کم سے کم طلب والا انسان بھی ہے وہ بھی رمضان سے پہلے اس کو فکر ہو جاتی ہے نماز کی اور ہر چیزوں کی. تو یہ 9th بیچ ایک بہت رائٹ ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے, جس میں انشاءاللہ تعالی ٹھیک رمضان سے پہلے ہی ہماری یہ 10 کلاسز تو ہو ہی جائیں گی, صورتیں ہو سکتا ہے رمضان کے دوران بھی چلے. تو اس وقت آپ اپنی ان رشتہ داروں کو, اپنے ان فرینڈس کو جن کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کافی دن سے کہتی آ رہی ہیں اور نئی بات ہو رہی ہے, بس پڑھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یا کوئی بھی دعا پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہے. یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ پہلے پارے کے آخری پیج پر یہ آپ کو مل جائے گی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھ لیں 2-3 بار, اس کی میننگ بھی دیکھ لیجئے گا, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تب کہیں. اسی طرح کسی سے بھی کوئی بات کہنی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر لیں, تب کہیں, اثر اللہ تعالیٰ ڈالے گا نا, تو اس سے کہیں کہ وہ جوائن کرے. اور جو فائدہ اگر ہم کو ہوا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں خود جب کلاس ڈفرینٹ بیچز ہیں نا, اب میں اپنا بھی فیڈ بیک دے دوں کہ جب میں ڈفرینٹ وہ کرتی ہوں کلاس, تو 8th کلاس بھی جب کر رہی ہوتی ہوں تو میں جب اپنی نماز پہ جاتی ہوں تو مجھے وہاں اپنی نماز پہ بھی فرق لگ رہا ہوتا ہے, میں خود بہت کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. جو چیز اگر ہم کو تھوڑی سی فائدہ دی, کہتے ہیں نا شیئر خیر, مطلب کہ جو خیر اگر ہم کو ملا, تو اگر کوئی خیر آپ کو پہنچا تو وہ ضرور آپ, کیونکہ اکیلے, جیسا میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر خود ہم کسی عمل پہ آ جائیں, اکیلے عمل کرنا کسی چیز پہ وہ جہاد اکبر ہو جاتا ہے پورے ماحول کو. اور یہ حق بھی ہے بندوں کا, یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کا حق بھی ہے کہ اگر ہمیں کچھ فائدہ پہنچا تو انہیں بھی وہ فائدہ پہنچے. تو یہ بات بھی لے کے چلنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے ایک ماحول کو بدلنا ہے, پورے اپنی جو ہمارے پوری ذہنیت تھی چینج ہو چکی ہے, اس چیز کو بھی بدلنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب کوششوں میں جو کچھ بھی ہے, ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی جو آتا ہے, جتنا آتا ہے, اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس سے معاف کرے. کوئی بھی بات اگر غلط منہ سے نکل گئی تو وہ آپ سب کے, مجھے بھی معاف کرے اور آپ سب کے ذہنوں سے اس بات کو ہٹا دے. جو بات صحیح نکلی اللہ تعالیٰ اس پہ دل جما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.